Here in this video, we are going to see the hepatitis viruses. Hepatitis viruses are those viruses which used to cause the hepatitis. Hepatitis is a disease where the damage of liver used to be take place, या फिर बोल सकते हैं by the name we can understand it, that is the term hepatitis through also. This hepato is related to the liver and itis means the inflammation. So this by this term also we can understand that ki in the hepatitis what used to happen ki inflammation of liver used to be take place. This inflammation of liver can be take place because of the different other reasons also, like excess of alcohol consumption के वजह से भी हो सकता है, या फिर other than this hepatitis virus there are the several other kind of viruses also which can cause the hepatitis, like the cytomegalovirus, yellow fever virus, Epstein-Barr virus, herpes simplex virus, rubella virus, enterovirus, etc. But out of these virus, the most common type of virus which used to cause the hepatitis is the hepatitis viruses. Hepatitis viruses used to they are the different types of the hepatitis viruses. These types of they used to consist the hepatitis A virus, hepatitis B virus, C, D, E, and G viruses. This basically the viral hepatitis is a primary infection of the liver by any one of the heterogeneous group of hepatitis virus. Any one of the this hepatitis virus मतलब कि किसी भी एक वायरस के वजह से हो सकता है, that is either A, B, C, D, E or G. Okay. What happens in hepatitis actually कि hepatitis में क्या होता है कि the damage of liver used to be take place. In this the killing of hepatocytes used to be take place because of this cytotoxic CD8 T cells. Okay. This so ये था hepatitis है ना. Now let's start the dealing the hepatitis viruses. तो this hepatitis viruses they are the different types of hepatitis viruses like A, B, C, D, E and G. ये जितने भी viruses हैं ये basically similar type of ecteric illness they used to show and the hepatotropism. Now what is ecteric illness? तो ecteric illness का मतलब ये होता है कि they used to show the jaundice type of symptoms या फिर clinical features like the yellowing of skins used to be take place. एंड हेपेटोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि दिस ओल्ड हेपेटोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि ये जितने भी वायरसेस हैं ये जितने भी वायरस हैं वो सभी दे यूज टू इफेक्ट द लिवर. प्रीवियसली आई से कि मैंने बताया कि हेपेटाइटिस में होता क्या है कि द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर यूज टू बी टेक प्लेस है ना. तो द इफेक्ट ऑफ लिवर इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ लिवर या फिर द कंडीशन इन विच द इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन यूज टू बी टेक प्लेस इन द लिवर इज द हेपेटोट्रोपिज्म. ठीक है. ये जितने भी वायरस हैं ये सभी आरएनए वायरस होते हैं एक्सेप्ट दी हेपेटाइटिस बी वायरस. यही सिर्फ एक ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस है, अदरवाइज ऑल द वायरसेस आर दी आरएनए वायरस. एंड ऑल द वायरसेस, all the hepatitis virus used to show the indistinguishable acute illness. The differentiation can only be done on the basis of their serological and molecular markers only. ठीक है. This hepatitis में अगर because of the other kind of the viral infection also, जैसा कि मैंने बताया इससे पहले कि और भी different types of viruses हैं जिनकी वजह से hepatitis हो सकता है, but the most common reason to cause the hepatitis is the hepatitis virus. ठीक है. So this was the little introduction of the hepatitis virus. Now let's start the hepatitis viruses. So before starting it, we must know कि what happens if the hepatitis virus infection used to be take place. तो सबसे पहले what used to happen कि the vomiting can be happen, the nausea like feeling can be nausea can be happen. तो nausea means कि the feeling like vomiting, but the vomiting does not used to happen. ठीक है.
And when the hepatitis virus infection used to be take place, either of the hepatitis virus used to infect the body, A, B, C, D, E or any other, तो क्या होगा, bilirubin level used to get increases and its level used to be exceeds more than 2 milligram per deciliter also. ठीक है. And basically the symptoms of this disease used to depends upon the type of the virus, कि किस टाइप का वायरस इन्फेक्शन कॉज किया है, ए किया है, बी किया है, सी और डी, जो भी वायरस इन्फेक्शन कॉज किए हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिम्टम देखा जाएगा, एज वेल एज उस पेशेंट का एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज उनका हेल्थ स्टेटस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन शोइंग द सिम्टम ऑफ द डिजीज. ठीक है. तो दीज आर दी सम introduction of the hepatitis virus. Now let's start the hepatitis A virus. ठीक है. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस में वी आर गोइंग टू सी दी हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको शॉर्ट में HAV भी कह सकते हैं. बेसिकली ये वायरस चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है एंड द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस हेपेटाइटिस वायरस इज फेकल ओरल रूट and rarely sometimes it can be transferred by the sexually means or through the blood also, but mostly it used to be transferred by the fecal oral route. One more thing ki वन मोर थिंग टू टेल यू दैट कि हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर होते हैं. ठीक है. और हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी वायरस यूज टू शो द सिमिलैरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस. लाइक जैसे कि अभी मैंने बताया कि फेकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, वैसे ही जो हेपेटाइटिस ई वायरस होते हैं उनका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन फेकल ओरल रूट ही होता है. बोथ दिस हेपेटाइटिस ई एंड ए virus used to show the acute type of illness and both of these virus are heat stable in nature. ये common चीज़ें हैं. ठीक है. and one more thing common in them is that कि both of them does not used to have the carrier while the other this BCG virus used to have the carrier. Okay. So these were the some common things between the A and E and the common things between the B, C and D. ठीक है. Now let's see the hepatitis A virus separately. That the hepatitis A virus जो है पहले बता दिया कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन उनका फेकल ओरल रूट हो सकता है या फिर सेक्सुअली ऑल्सो दिस इफ द इन्फेक्टेड पार्टनर इज बीइंग प्रेजेंट, तो वो अपने पार्टनर को क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ठीक है. ट्रांसफर हो सकता है वायरस, या फिर थ्रू दी ब्लड ऑल्सो अगर इन्फेक्टेड डोनर इज बीइंग प्रेजेंट. ठीक है. इन्फेक्टेड डोनर अगर प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड डोनर अगर है तो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर दिस ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी दिस हेपेटाइटिस ए वायरस कैन बी ट्रांसफर to the healthy person. ठीक है. Commonly this hepatitis A virus is known as the infective or infectious hepatitis. ठीक है. Now let's see the morphology of the hepatitis A virus. तो hepatitis A virus जो है वो नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं, पहले ही बताया RNA वायरस होते हैं. तो ये जो इनका जो RNA होता है दैट इज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं. दे आर आइकोसाहेड्रल इन सिमेट्री एंड इनका जो साइज होता है वो 27 नैनोमीटर होता है. दे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनके वो पिकोरना वायरस से मिलते हैं. दे यूज टू शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द पिकोरना वायरस, इसलिए दे यूज टू बिलोंग टू द फैमिली दैट इज द पिकोरना विरिडी. ठीक है. एंड वन ऑफ द जीनस हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑफ इट इज दैट इज द एपेटो वायरस. ठीक है. बेसिकली इससे पहले बताया कि ये हीट स्टेबल वायरस होते हैं, है ना. तो दे यूज टू शो द रेजिस्टेंस टू द हीट एट द 60 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड
तक इसको अगर एक्सपोजर किया जाए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक्सपोज किया जाए, हीट एक्सपोज किया जाए फॉर दी 1 आवर, तब तक दे यूज टू रेजिस्ट इट, है ना, बिकॉज दे आर दी हीट स्टेबल वायरस. ठीक है, तो दे यूज टू रेजिस्ट दी 60 डिग्री ऑफ हीट फॉर दी 1 आवर. ठीक है, they used to resist the ether also. They are the acid stable also, है ना, and because of this acid stable characteristic they used to resist the pH that is 3, है ना. But they can be inactivated, इनको inactivate किया जा सकता है if they are being boiled for the 1 minute. देन क्रॉनिसिटी, पहले ही बताया कि इट यूज टू कॉज द एक्यूट टाइप ऑफ इलनेस, तो इट इज़ अ एक्यूट टाइप, इसी वजह से दे डज नॉट यूज टू कॉज द फल्मिनेंट डिजीज, है ना. फल्मिनेंट डिजीज का मतलब क्या होता है कि फल्मिनेंट डिजीज आर द डिजीज वेयर द लिवर बिगिंस टू फॉल वेरी क्विक. तो दो इट इज़ अ एक्यूट काइंड ऑफ illness they used to show, so they does not used to cause the fulminant disease, and if they used to cause, so that is very rare type. ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक्स हो सकता है. अदर एसोसिएटेड फीचर्स या फिर अदर एसोसिएटेड रिस्क जो हैं, तो बेसिकली देखिए सेकेंडरी अटैक दे यूज टू शो. सेकेंडरी अटैक रेट इज दैट इज दी 10 to 20% ऑफ इट, है ना. एंड नाउ लेट्स सी सम क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम्स. तो बेसिकली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं एंड दे यूज टू शो दी प्रोड्रोमल प्री एक्टेरिक और एक्टेरिक स्टेज. दे कैन शो दे इन this the fever, malaise, vomiting, anorexia, nausea, liver tenderness used to be happens. ठीक है, next the laboratory diagnosis. For the diagnosis, firstly we need to collect the specimen. For the specimen we can collect the feces or the serum of the patient, and then the serological testing can be done. Serological testing में we can do the antibody detection test, that is ELISA, किया जा सकता है. देन द सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन डू, दैट इज़ द प्रोफाइलैक्सिस, जिनको कहा जाता है, जिनको कह सकते हैं इन द मेडिकल टर्म वी कैन यूज द टर्म प्रोफाइलैक्सिस. तो प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन डू, दैट इज़ द सैनिटरी प्रैक्टिसेस वी कैन डू. वी कैन prevent the contamination of the food and water from, है ना, and as well as intramuscular injections of the vaccine can be taken. Okay, for the recovery from this virus, the 4 to 6 weeks can be लग सकता है. ठीक है, 4 to 6 weeks लग सकता है for the recovery. So this was the hepatitis A virus. Now let's start the hepatitis B virus. Mostly the questions used to be comes from this, so we will see it in detail. तो hepatitis B virus we can say it as a HBV से भी डिनोट किया जाता है इसको. हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बेसिकली इनको सीरम हेपेटाइटिस, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, होमोलॉगस सीरम जॉन्डिस भी कहा जाता है. इट्स कॉमन नेम इज these things, these three. This hepatitis B virus can be transmitted through the this blood transfusion, intravenous, intramuscular, या फिर subcutaneous, या फिर sexual, या फिर vertical transmission can also be happen. Vertical transmission मतलब from the parents to the offspring can also be transferred, है ना, या फिर through the placenta this hepatitis B virus can be transferred. ठीक है. Now let's see the morphology of the hepatitis B virus. तो hepatitis B virus जो होते हैं वो basically spherical in shape होते हैं. Its size could be of 42 nanometer. It is basically a DNA virus, we know it, and it is a partially double-stranded DNA circular virus.
इनका जो डीएनए होता है दैट इज सर्कुलर एंड इट इज पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड. Partially, why I am saying it partially, because its plus strand is incomplete one, है ना. That is why it is being said that it is the partially double stranded DNA virus. ठीक है. They are enveloped virus and they used to belong to the family that is the Hepedna viridae. ठीक है. And there are the two genera, दो genera है इनके, that is the Orthohepedna and the second one is Avihepedna virus. Incubation period इनका 1 to 6 month होता है and for the recovery they used to take 3 to 4 months. Then here is the structure of hepatitis B virus. यहाँ पे structure है तो इसको देखा जा सकता है कि जैसा कि बताया मैंने कि हेपेटाइटिस वायरस जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है एंड दे आर एनवेलप्ड वायरस. ये एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरी करते हैं और इनका दिस कोर एंड जो जीनोम है उनका साइज हियर वी कैन सी दिस दैट इज दी 27 नैनोमीटर एंड द होल इनका जो साइज है वायरस का वो 42 नैनोमीटर है. ठीक है. एंड जैसा कि बताया यहाँ पे कि दे आर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड बिकॉज जो इनका प्लस स्ट्रैंड होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसके वजह से ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर वायरस होते हैं. ठीक है. सर्कुलर डीएनए वायरस होते हैं. Then let's see the antigenic diversity of the hepatitis B virus. तो इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो फोकस कर लेते हैं तो हमको इजीली समझ में आएगा इसका एंटीजेनिक डाइवर्सिटी. ठीक है. तो एंटीजेनिक डाइवर्सिटी यूज्ड टू बी सीन बिकॉज ऑफ दी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के वजह से एंटीजेनिक डाइवर्सिटी इज यूज टू बी सीन इन दी हेपेटाइटिस बी वायरस. जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होते हैं दे यूज टू कैरी दी 2 डिफरेंट एंटीजेनिक कंपोनेंट्स. ठीक है. 2 डिफरेंट एंटीजेनिक कंपोनेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट. तो पहला जो एंटीजेनिक कंपोनेंट होता है वो कॉमन होता है एंड दैट इज ए, है ना. एंड जो दूसरा है they used to carry the 2 pairs of specific antigen. जो दूसरा है वो specific type का होता है and they used to carry the 2 pairs of antigen that is the DY and WR. ठीक है. और either of subtypes of this hepatitis B surface antigen में either of subtypes में ये जो सेकेंड पेयर जो होता है स्पेसिफिक एंटीजन का जो सेकेंड पेयर होता है उसमें either of पेयर में से कोई सा भी एक ही एंटीजन प्रेजेंट होता है. जो सेकेंड पेयर में दैट इज जो बोल रहे हैं स्पेसिफिक एंटीजन में जो बोल रहे हैं जो 2 पेयर होते हैं दैट इज द DY एंड WR. उसमें से either of सबटाइप्स में अगर DY में से either D होगा प्रेजेंट या फिर Y होगा एंड इफ अगर WR में अगर W प्रेजेंट है तो R नहीं होगा और R प्रेजेंट है तो W नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम लोग को सब टाइप्स दिख रहा है. यहाँ पे द 4 सब टाइप्स आर बीइंग दिख रहे हैं यहाँ पे आपको दैट इज दी ADW, ADR, AYW एंड AYR. ठीक है. तो ये क्या है दीज ऑल आर दी सब टाइप्स. ठीक है. विच इज यूज टू बी प्रेजेंट इन दी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. ठीक है. तो अब ये आई थिंक इट इज क्लियर कि दिस पहला जो एंटीजेनिक कंपोनेंट है दैट इज ए वो सब में कॉमन दिख रहा होगा, है ना. और जो सेकेंड पेयर है जो स्पेसिफिक टाइप होता है उसमें 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आइदर ऑफ 1 पेयर ही प्रेजेंट है. सब में दिख रहा होगा. अगर डी है तो उसमें वाई नहीं है और अगर वाई है तो वहाँ पे डी नहीं दिख रहा है ना. एंड सेकेंड वाला जो पेयर है स्पेसिफिक का डब्ल्यू आर में से अगर डब्ल्यू प्रेजेंट है तो आर नहीं है, आर है तो डब्ल्यू नहीं है. ठीक है. देन इनका जो जीनोम है दैट इज ऑफ कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड इनमें 4 ओवरलैपिंग जीनोम इज यूज टू बी प्रेजेंट. 4 ओवरलैपिंग जीनोम्स में दिखाई दे रहा होगा कि 4 ओवरलैपिंग जीनोम्स में S, P, C एंड X प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे, है ना.
और ये सभी जीनोम जो हैं वो दे यूज टू कैरी द डिफरेंट रीजन्स एंड हर रीजन यूज टू एंड एवरी रीजन यूज टू कोड फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो जीन है वो एस है ना। एस में आपको 3 जीन्स दिखाई दे 3 रीजन दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज द एस, प्री S1 एंड प्री S2 दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दिस जो एस जीन जो होता है वो बेसिकली कोड्स करता है फॉर सरफेस एंटीजन के लिए, दे यूज टू बेसिकली कोड फॉर दी सरफेस एंटीजन। इनमें से जो एस रीजन है वो जो एस रीजन है दे यूज टू कोड फॉर दी एस और मेजर प्रोटीन के लिए ये कोड करते हैं। और दूसरा जो है प्री एस जो दूसरे जो रीजन है जो दूसरे रीजन है वो प्री एस रीजन है, वो भी 2 टाइप के हैं, आपको दिखाई दिए होंगे यहाँ पे कि प्री S1 एंड प्री S2, है ना। अगर ट्रांसलेशन प्री S2 रीजन से हो रहा है तो दे विल यूज टू प्रोड्यूस दी M या फिर मिडिल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर एंटायर जीन ही अगर ट्रांसलेट हो रहा है तो वहाँ पे लार्ज प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, तो दैट इज नोन एज दी L या फिर लार्ज प्रोटीन जिनको कहा जाता है। सेकेंड जीन जो है वो C जीन है, दिस C जीन यूज टू कैरी द 2 रीजन that is the C and pre-C, ठीक है। 2 regions are being present, that is C and pre-C, they used to consist 2 regions, ठीक है। जो C region है they used to code for the core antigen, that is the HBCAG जो दिख रहा है आपको, hepatitis B core antigen, they used to code for the core antigen, and these core antigens used to assembled as a nucleocapsid core particles, जैसे कि इसी प्रीवियस स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, that is the nucleocapsid, that is the HBCAG जो दिख रहा है, that is the hepatitis B core antigens, they used to code for them, ठीक है। and they used to assemble, and ये proteins के production करने के बाद they used to assemble in a form of a nucleocapsid core particles के form में, ठीक है। और जो दूसरा जो रीजन है दैट इज दी प्री सी रीजन जो है वो किसके लिए कोड करता है, फॉर दी HBE एंटीजन के लिए ये कोड करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो इससे पहले बताए कि HBCAG दैट इज दी हेपेटाइटिस B C एंटीजन जो है वो कोड करते हैं, वो क्या होते हैं कि दे यूज टू गेट असेंबल इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोकैप्सिड कोर पार्टिकल के फॉर्म में ये असेंबल्ड हो जाते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं होते हैं, एज जो इससे प्रीवियस हम लोग एस एंटीजन जो देख रहे थे, सरफेस एंटीजन जो देख रहे थे, they used to be circulate in the blood, while these antigen does not used to circulate in the blood but they used to be present in the hepatocytes, जिनको हम by the immunofluorescence we can demonstrate it, है ना। and because of this antigen which used to be present in the hepatocytes, इनकी वजह से the antibodies used to be produced, that is the IgM and IgG which used to be found in the blood, वो blood में ज़रूर पाया जाता है। और जब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है तो इन अ फॉर्म ऑफ अ सीरोलॉजिकल मार्कर दे यूज टू बी appear, though all the serological markers used to be get disappeared, but this used to be present in the blood while this diagnosis we can see it, while the other this pre-C region जो मैंने बताया, they used to result to produce the HBE antigen, that is a non-particulate but they are the soluble antigen, ये soluble antigen होते हैं और ये blood में present होते हैं and it can be easily detectable and it can be easily detectable as a detectable marker, ठीक है। then next जो gene है that is the P gene, this P gene is the largest one, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। this P gene is the largest gene
and it codes for the DNA polymerase enzyme. And the next fourth gene is the X gene, and this X gene this codes for the small non particulate protein के लिए ये कोड करते हैं, that is the HBX antigens के लिए ये कोड करते हैं. And it has the trans activating effects. It used to have the trans activating effects, जिसकी वजह से क्या होता है कि the replication used to get enhanced, है ना. both of the viral as well as the cellular genes जो भी present होते हैं उनमें क्या होता है, this used to enhance the replication because of its trans activating effect. then this hepatitis B virus जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, they are heat stable virus, but they are susceptible to the chemical agents, like they are the acid sensitive, and by the exposure of the hypochlorite or 2% of the glutaraldehyde, this its infectivity used to get inactivated. इनकी infectivity को inactivate किया जा सकता है by exposing it with by the hypochlorite or 2% of glutaraldehyde. इससे पहले ही बताया मैंने कि इनके कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. एंड अदर एसोसिएटेड फीचर्स लाइक बिकॉज ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस के वजह से व्हेन जब सीवियरिटी जब बढ़ जाती है ना, तब अदर एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं. एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, और दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में लाइक दिस ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है. दिस सिरोसिस हो सकती है, एथराइटिस हो सकता है, पॉलीवेंटेराइटिस नोडोरा हो सकता है. तो ये सारी एसोसिएटेड अदर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं व्हेन दिस severity used to be happens. ठीक है. For the laboratory diagnosis, this detection can be done. This viral markers detection can be done by through this. The diagnosis of this hepatitis B can be happen. इससे पहले जब हम लोग जीन डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे मार्कर्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है, तो उनके डिटेक्शन से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं. ठीक है. तो दे आर दी सर्टन अदर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस ऑल्सो. तो प्रोफाइलैक्सिस में क्या हो सकते हैं कि वी कैन अवॉइड दी प्रोमिस्कस सेक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, semen or the other body fluids of patients or carriers can be avoided. The health education is very necessary. Health education can be given, है ना, like use of disposable syringes and needles etc should be done to avoid, to prevent this disease. Active and passive immunization can be done to prevent this disease. And for the treatment we can use the interferon alpha can be given. इसको अकेले अलोन भी दिया जा सकता है या फिर विद द कॉम्बिनेशन विद द अदर एंटीवायरल एजेंट्स भी दिया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस. तो अदर एंटीवायरल एजेंट्स क्या हैं, दैट इज दी लैमीवुडिन कैन बी गिवन अलॉन्ग विद दिस इंटरफेरॉन अल्फा, या फिर फेमसाइक्लोवीर कैन ऑल्सो बी गिवन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंटरफेरॉन अल्फा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. Now the next virus is hepatitis C virus. Hepatitis C virus. Hepatitis C virus can also be denoted as HCV, and this is a group of non-A or non-B viruses. The common name of this hepatitis B virus is post-transfusion hepatitis. The route of transmission of this hepatitis B virus is blood, sexual or the vertical transmission can also be happen. Vertical transmission अब समझ में आ रहा होगा, through from parents to the offspring also can be happen, or by the sexually also it can be transmitted. The common name of this hepatitis B virus is non-A, non-B or the post-transfusion hepatitis.
and it is a group of and this hepatitis C virus is also a group of non A और non B viruses. जैसे कि जो D है, E है, ये सब भी क्या है, these all are also the group of non A and non B viruses only, है ना. तो अदर देन हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, जितने भी अदर जो वायरसेस हैं सी डी ई जी जो हैं वो नॉन ए एंड नॉन बी वायरसेस के ग्रुप में ही आते हैं. ठीक है, तो सी वायरस भी उन्हीं ग्रुप में से है. Now the morphology. तो by the structure you can see the structure of this hepatitis C virus. से समझ में आ रहा है कि spherical shape के होते हैं. ठीक है, ये spherical shape के होते हैं, as well as ये जो वायरस हैं ये एनवेलप्ड वायरस होते हैं, है ना. एंड इनका जो साइज़ है वो 50 to 60 नैनोमीटर यूज टू बी 50 to 60 नैनोमीटर इनका साइज़ हो सकता है. इनके जो जीनोम होते हैं, जीनोम जो है वो लीनियर दिख रहे होंगे आपको. इनका जो आरएनए इनकी जो जीनोम है वो आरएनए होते हैं. दैट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड लीनियर टाइप के होते हैं, विच इज़ यूज टू बी एनक्लोज्ड विद इन द कोर एंड विच इज़ सराउंडेड बाय द एनवेलप. जैसा कि मैंने बताया कि ये एनवेलप्ड वायरस होते हैं. और दे यूज टू कैरी द स्पाइक्स जो कि ऑन इट्स सरफेस, है ना. जो एनवेलप होते हैं उनमें स्पाइक्स प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं. इनका स्ट्रक्चर एंड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत हद तक फ्लैवी वायरस से रिजेंबल करता है ना. एंड that is why they used to belong to the family that is the Flaviviridae, and one of the genus is being identified of it is that is the Hepacivirus. एंड ये स्फेरिकल शेप के होते हैं. और ये जो वायरस है दे ऑल्सो यूज टू शो द जेनेटिक एंड द एंटीजेनिक डाइवर्सिटी. इस वजह से इनके 6 जीनोटाइप्स देखे गए हैं और जिनके बहुत सारे सब टाइप्स भी पाए जाते हैं. Now let's see the clinical features of this virus. तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 15 to 60 डेज का हो सकता है. इसका एवरेज मीन जो है वो दैट इज़ द 50 डेज के होते हैं. They used to show the acute illness and acute illness is mild और anicteric हो सकते हैं, है ना. anicteric मतलब कि हो सकते हैं, मीन्स इट मतलब कि ये icteric विच नॉन इक्टेरिक बोला जा सकता है ना. तो दैट इज अ माइल्ड और एन इक्टेरिक टाइप ऑफ इलनेस दे यूज टू शो. एंड इट इज अ important part its important part is chronic illness, while its important part is chronic illness. And if it's this illness या severity when used to be begins, तो हो सकता है कि it can develop the hepatocellular carcinoma. They can develops the hepatocellular carcinoma. तो other associated features जो है hepatocellular carcinoma can be happen. Cirrhosis can take place of liver, है ना. Arthritis, autoimmune disorders like the your autoimmune glomerulonephritis हो सकता है. And for the diagnosis of this hepatitis C virus, the ELISA can be done. And for the prophylaxis, only general prophylaxis is present. No specific active or passive immunizing agent is being available for hepatitis C virus. And for the treatment of this hepatitis C virus can be done by the by giving the interferon अल्फा अलोन या फिर विद दी राइबाविरिन के साथ दिया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस.